A very good morning to all of you. Welcome to your next class. So today we are going to continue the chapter. So we are studying genetic basis of inheritance, chapter number 5th. So today we are going to study about the Mendel's experiment. Okay. So here Mendel experiment उन्होंने experiment किया था. तो he selected a garden pea. इसका scientific name क्या है? Pisum sativum. तो Mendel ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था वो थी आपकी गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम. सो एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट. सो व्हाट ही गॉट द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग द पी प्लांट, व्हाई ही सेलेक्टेड द पी प्लांट. तो फर्स्ट पॉइंट इज pure variety of pea were available. So the pure variety of pea, मतलब pea plants have a pure variety was available. So it was easy to him to select the pea plant. Second one is pure pea plant showed a number of contrasting character. Means the pea plant show number of contrasting character. Contrasting character means like they have a different shape. Means someone are tall, other one is dwarf. Pea plant are round, wrinkled, or like color like yellow, green, or like it also have a shape, pod shape, like inflated, constricted. ठीक है. And the flower also purple, white. So he have so many contrasting form to select the variety. Third point is the flower structure of pea is such as allow to control breeding. Okay, so the structure of flower is like the structure of pea plant. The structure of flower of pea plant is like control breeding. Okay, and the fourth point is pea flower normally remains closed and undergoes self pollination. When the self pollination occur, the pea flower normally remains closed. Okay, and fifth point is pea plant have a short lifespan. Okay, so pea plants have a very short lifespan, like resulting in 3 months. So it will easy to these are some advantages to select pea plants. And another one is large number of seed produced per plant. Means there are so many seeds are produced in particular plants. Okay, so these are some advantages why the Mendel select the pea plant. So next point is Mendel experimental technique. Okay, what was her particular technique? So first one is selection of pure parent plant. He select the pure parent plant. Second one is hybridization of a pure plant for F1 generation. So you understand the term F1 generation, later we'll discuss about this. Third one is self breeding in hybrid plant or F1 generation. So he do self breeding in hybridization plant. Okay, hybrid plant. Third one, next point is inheritance of one gene or Mendel monohybrid cross. So a cross between two parent that differ in only one heritable character is called as monohybrid cross. Okay, so a cross as मतलब दो डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराना, जो क्या कहते हैं, जिनका सिर्फ एक कैरेक्टर, वन हेरिटेबल कैरेक्टर इज different. Okay, so it is said to be monohybrid cross and resulting breed is called as monohybrid. And the जो result में breed मिलेगी हमें, उसको हम क्या कहेंगे? monohybrid breed कहेंगे. Okay, in such experiment Mendel selected size of the stem. In such type of experiment Mendel ने क्या किया? पर्टिकुलर साइज को सेलेक्ट किया. इनहेरिटेंस ऑफ जीन में और मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने पर्टिकुलरली एक साइज़ को सेलेक्ट किया. ओके, समझते हैं. लाइक देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं. प्योर साइज़ को उन्होंने सेलेक्ट किया. लाइक देखिए, दोनों कैपिटल टी हैं और दोनों कोई प्लांट है जो कि टॉल है और कोई है डार्फ है. तो टॉल के लिए हमने क्या लिया? हमने कैपिटल टी लिया. ठीक है, और डॉर्फ के लिए हमने क्या लिया? स्मॉल टी लिया. ओके, तो यहाँ पे पेरेंट्स का गैमेट है, उसमें कैपिटल टी आया. उसके बाद ही क्या हो रहा है? देखिए, हमने इसको क्रॉस कराया, तो देखिए कैसे हो रहा है. स्मॉल टी कैपिटल टी. तो क्रॉस बिटवीन स्मॉल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला? टॉल मिला, क्योंकि सारा एक ही जैसा है कि ये जो प्योर प्लांट है ये इस पर डोमिनेंट है. ठीक है, तो इसलिए हमें सारे प्लांट क्या मिले? सारे प्लांट हमें टॉल मिले. किस में मिले? F1 जनरेशन में.
ठीक है, ये आपकी F1 जनरेशन है जिसमें हमें सारे प्लांट क्या मिले, टॉल। इसलिए टॉल मिले क्योंकि हमने प्योर प्लांट्स को लिया और इसको हमने कहा F1 जनरेशन मोनोहाइब्रिड। ठीक है, फिर क्या है, हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया। ठीक है, जैसे इसमें पेरेंट में क्या हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया था प्योर प्लांट, अभी हमने क्या लिया, प्योर प्लांट नहीं लिया है, एक टॉल एक स्मॉल। ठीक है, तो इसका जब गैमेट आया उसके साथ जब हमने क्रॉस कराया तो हमने देखा कि हमें डिफरेंट टाइप का रेशियो मिला। जैसे देखिए कैपिटल टी, फिर इसका हमने कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आया, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो हमें फिनोटाइपिक रेशियो हमें क्या मिला F1 जनरेशन में, तो 3 टॉल मिले हमें, ये और ये तीनों टॉल मिले, और एक हमें क्या मिला, एक हमें डॉर्फ मिला, छोटा मिला। ठीक है, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, एक पूरा प्योर है, प्योर टॉल है, 2 मतलब ये टॉल और ये टॉल हैं ही, तो यहाँ पे 2 ऐसे टॉल मिले, और एक आपका क्या मिला, हमें डॉर्फ मिला। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अगर आपको कुछ डाउट लगता है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ कन्फ्यूज़न लग रही है कि ऐसा किया कैसे हो गया, तो ये वैसे ये बहुत ही बेसिक है, अभी और आगे हम और डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे और चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस। अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल of unknown genotype and recessive parent plant is called as test cross. So a cross between which individual which is unknown to genotype and the recessive parent, and the parents are recessive in nature, so it is said to be test cross. To determine the genotype of a tall plant, test cross is done. ठीक है, तो किसी भी प्लांट का जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए जो टेस्ट क्रॉस करते हैं वो इसीलिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, लाइक देखिए पेरेंट, ठीक है, इसका एक टॉल है एक डॉर्फ है, पेरेंट का गैमेट हमने लिया, फिर हमने क्रॉस कराया, तो देखा कैपिटल, इसमें वही चीज़ होगा, इसमें सारे ही टॉल मिलेंगे, ऑल फ्लावर आर टॉल्स ओके, होमोजाइगस सेम ही है। फिर दूसरा हमने यहाँ पे एग्जांपल और कराया, वही सेम चीज़ कि एक टॉल है और एक डॉर्फ है, प्योर डॉर्फ है। ठीक है, तो इसका जब हमने क्रॉस कराया तो हमें 1:1 का रेशियो मिला। ठीक है, 1:1 का रेशियो मतलब इक्वल, हाफ फ्लावर आर टॉल एंड हाफ फ्लावर आर डॉर्फ। ठीक है, और ये हेट्रोजाइगस हो गया यहाँ पे, क्योंकि सारा सेम हो गया था, होमोजाइगस हो गया था, और यहाँ पे क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो पढ़ते हैं, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रिएट यूनिट कॉल्ड फैक्टर और जीन। ठीक है, तो कैरेक्टर विच आर कंट्रोल बाय डिस्क्रिएट यूनिट इज नोन एज फैक्टर और जीन। फैक्टर अकर इन पेयर्स, ओके, एंड इन अ डिससिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर इज डोमिनेट्स। ठीक है, वन मेंबर क्या करता है, डोमिनेट करता है। फिर नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ सेग्रेशन। The parent contain two alleles during gamete formation. The factor of alleles of pair segregates from each other and such that a gamete receive only one of two factors. ठीक है, तो law of segregation means to say the parent contain only 2 alleles during the gamete formation, but the factor or the alleles of pair segregates, okay, from each other and such that a gamete receive only 1-2 factor. Okay, so this is a law of segregation. Okay, we'll understand more about law of segregation, law of dominance with the examples. The next is your incomplete dominance. Incomplete dominance, which is discovered by Karl Korns in 1903. It is a phenomena where none of the 2 alleles of a gene is dominant over each other, so that when both of them are parent together in a new phenotype is formed. Example इसका Sandrogen. Okay, so these are the incomplete dominance, the phenomena where number of तो 2 alleles, like देखिए क्या होता है, सबसे पहले the phenomena where number of 2 alleles of a gene is dominant. ऐसा फिनोमेना जिसमें नंबर ऑफ अलीज कितने हैं, 2 हैं, जो कि क्या है, जीन के नंबर ऑफ अलीज ऑफ अ जीन, मतलब जीन के दोनों अलीज जो हैं वो क्या है, डोमिनेंट हैं, किसके ऊपर, ओवर ईच अदर, सो दैट व्हेन बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, जब दोनों प्रेजेंट रहेंगे टुगेदर, अ न्यू फिनोटाइप इज फॉर्म।
ठीक है। तो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही होगा कि जिसको इन्होंने इसको डिस्कवर किया था कौन से ईयर में, 1903 में। ठीक है। और ये फेनोमेना जो है उसमें क्या है कि जब नंबर ऑफ अलीज, जब जीन के नंबर ऑफ अलीज कितने प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट हैं और दोनों डोमिनेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा, तो व्हेन बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन टुगेदर, जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो न्यू फिनोटाइप, एक नया फिनोटाइप प्रेजेंट होगा, नया फिनोटाइप फॉर्म्ड होगा। ठीक है। एग्जाम्पल इसका सेंड्रोजन है। ठीक है। तो उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रेशन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कुछ भी आपको समझ नहीं आया या फिर कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।